بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 26 کی تلاوت کا خلاصہ۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الاحقاف شروع ہو رہی ہے۔ احقاف ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں۔ اس میں قوم عاد کا ذکر ہے جو ریت کے ٹیلوں کے پاس آباد تھی، اسی لیے سورت کا نام سورۃ احقاف رکھ دیا گیا ہے۔ قل ارائیتم کی آیات سے میں خلاصہ آپ کی خدمت میں شروع کر رہا ہوں۔ توحید باری تعالیٰ پر یہاں دلائل نقلیہ اور دلائل عقلیہ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے، تو عقیدہ توحید پہ عقلی دلائل بھی ہیں اور نقلی قرآن و سنت کے ساتھ جو نقل ہو کر آئے ہیں وہ دلائل بھی ہیں۔ ایک دلیل جو آسمانی کتاب میں ہو، ایک دلیل جو پیغمبر کی زبان سے ہو، اس طرح کی دلائل ارشاد فرمائے جا رہے ہیں۔ تو یہاں فرمایا اے پیغمبر آپ ان سے فرمائیے جو تم اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہو، یہ بتاؤ جن کو تم نے خدا کے علاوہ خدا بنا رکھا ہے، کیا انہوں نے کائنات کی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ آسمانوں کو کوئی حصہ پیدا کیا ہے؟ یہ دلیل عقلی تھی کہ آپ اس طرح ہمیں کچھ دکھا دیں۔ آگے ائتونی بکتاب من قبل ھذا کہہ کر تمہارے اس دعوے پر اللہ جل شانہ نے گویا یوں فرمایا کہ اس سے پہلے کسی کتاب، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا آسمانی صحیفے ہو، اس میں کچھ لکھا ہوا ہے تو اس نقل شدہ دلیل کو ہمیں دکھا دو اگر آپ کے پاس ہے، یا کسی پیغمبر کی زبان سے کوئی بات نکلی ہو، علمی بات ہو، تو وہ آپ پیش کر دو کہ اگر آپ سچے ہو تو یہ کوئی چیز ہی پیش نہ کر سکے۔ پھر قرآن کریم کی حقانیت کو ام یقولون افترا کی آیت کے اندر، اس آیت میں کفار و مشرکین کے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ دیا ہے قرآن کریم، تو فرمایا تو پھر تو مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ کوئی بندہ اپنی طرف سے کوئی چیز اللہ کی طرف پیش کر دے، گھڑ کے پیش کر دے، تو اسے اللہ کی طرف سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو معلوم ہوا جب میں بچا ہوا ہوں تو اس کا مطلب ہے چیز اللہ کی طرف سے ہے، میں نے اپنی طرف سے گھڑ کے پیش نہیں کی۔ اس کی اگلی آیت میں قل ارائیتم ان کان من عند اللہ، اس میں اہل کتاب کو قرآن پر ایمان لانے کی پیشین گوئی کی جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے کچھ حضرات بھی ایمان لائیں گے، مثلا حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عدی کی بہن، اس طرح حضرات ایمان لائے، یہ اہل کتاب تھے تو قرآن کریم پر ایمان لائیں گے اور یہ گواہی پوری ہوئی۔ اس جیسی کتاب جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی تو مشرکین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے اہل ایمان قرآن پر ایمان لا رہے ہیں اور تم پر سبقت لیے جا رہے ہیں، اور تم عرب ہو کے اپنے ہو کے اس کے باوجود بھی تکبر اور غرور میں پڑے ہوئے ہو۔ اس کے آگے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اس آیت کے اندر والدین کے حقوق کو ذکر کیا گیا۔ یہاں اولاد کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کو حکم دیا، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ والدین اسلام لے آتے، کفار اولاد کے معاملات کے اوپر وہ معاملہ کفر کے ساتھ رہتا، تو لیکن یا بعض دفعہ اولاد مسلمان ہو جاتی والدین کافر رہتے، یا والدین مسلمان ہو جاتے اولاد کفر پر رہتی، تو اس طرح کے معاملات تھے۔ تو یہاں سمجھایا جا رہا ہے اولاد کو کہ اگر والدین جیسے بھی ہوں تم نے ان کے حقوق کا خیال کرنا ہے، ان کے غلط عقائد اور گناہ کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ آپ ان کے ساتھ نافرمانی میں آ جائیں، ان کی فرما برداری کریں لیکن عقائد کے معاملے میں شریعت کی بات مانیں۔ آگے حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور شان کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ دعا مانگی تھی، اللہ مجھے توفیق دے وہ نعمتیں جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پہ فرمائی ہیں، میں اس کا شکر ادا کروں اور میں ایسے نیک اعمال کروں جس سے اے اللہ آپ راضی ہو جائیں اور آپ میری اولاد کو بھی نیک بنا دیں۔ اے اللہ میں آپ کی طرف سے رجوع کرتا ہوں اور اپنے فرما برداروں کے یہ حضرت ابوبکر صدیق کی دعا ہے جس کو رب کریم نے قبول فرمایا ہے۔ اس کے آگے وذکر اخا عاد کی جو بات کی جا رہی ہے، یہاں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی کہ قوم عاد کو توحید کی دعوت دی گئی تھی۔ وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ تمام انبیاء کرام کے نزدیک متفقن علیہ ہے۔ تو قوم عاد جو یمن کے علاقے میں آباد تھی، حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا۔ حضرت ہود نے بھی دیگر انبیاء کی طرح اپنی قوم کو
समझाया, दीन की तरफ बुलाया, लेकिन वो न माने तो इन पर अजाब नाजिल हुआ और ये मर गए। ये इनका जिक्र है। फिर आगे जिन्नात ने जो है ना क्या कहते हैं, कुरान करीम को माना, इस्लाम को कबूल किया, इसका जिक्र है। वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ताइफ को तबलीग की और तबलीग से हुजूर पाक अलैहि सलाम वापस आ रहे हैं। नखला एक जगह है, वहां सुबह की नमाज की अदायगी में रसूलुल्लाह तिलावत फरमा रहे हैं। जिन्नात की एक जमात वहां से गुजर रही है, एक दूसरे को खामोश होने के लिए कह रहे हैं, कालू अनसितु, खामोश हो जाओ, जुबान से खामोश हो जाओ, यानी खामोशी हो जानी चाहिए तिलावत के वक्त। ये अदब सिखाया जा रहा है कि जिन तो कुरान सुन के खामोश हो जाए और हम कुरान सुन के खुद बोलना शुरू कर दें, नहीं। इसलिए कुरान के मुकाबले में कुरान भी नहीं पढ़ना चाहिए, खामोश होकर उसको सुनना चाहिए। तो इसीलिए उनके वफूद आए, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने दावत दी, उनने दीन को कबूल किया। इसके अलावा भी वक्तन फवक्तन जिन्नात हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के पास आते, इस्लाम की दावत कबूल करते, इस्लाम पे अमल करते। अगली आयत के अंदर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन की जा रही है कि फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल, कि जैसे पहले अंबिया कराम ने सब्र फरमाया और उन्होंने पूरी तरतीब रखी, तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया। गुज़श्ता आयात में फरमाया गया था कि ताइफ से जब आप वापस आ रहे तो जिन्नों की जमात ने कुरान सुना, वो इस्लाम लाए, और आले ताइफ ने हुजूर पाक को तकलीफें पहुंचाई थी, ये सारी चीजें थी। तो अल्लाह जल्ला शानहू ने नबी अलैहिस्सलाम को तसल्ली की बात फरमाई कि आप सब्र फरमाइए। पहले अंबिया के साथ भी इस तरह किया था कौम ने, उन्होंने भी सब्र फरमाया, आप भी नबी हैं, आप भी सब्र फरमाइए। ये कहकर सूरत अहकाफ यहाँ तकरीबन मुकम्मल हो गई। यहाँ अगली सूरत जो है वो सूरत मुहम्मद है। ये कुरान करीम की एक मायानाज सूरत है। इस सूरत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मसमूम किया गया है, क्योंकि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी और इसमें ग्रामी का नाम भी मौजूद है। यहाँ कुफ्फार और मुमिनीन के काम के नताइज बताए गए हैं कि काफिरों ने दो काम किए। पहला, इन्होंने कुफ्र किया, दूसरा, इन्होंने लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका। नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह ने इनके अमाल जाया किए। अब इनके मुकाबले में ईमान लाए जो ईमान वाले थे, अहले ईमान, उन्होंने भी दो काम किए। ईमान लाए, नेक अमाल किए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ नाज़िल हुआ उसको दिलो जान से माना, तो नतीजतन अल्लाह ने इनके गुनाह माफ फरमाए, इनके दिलों की इस्लाह फरमा दी। ये बात फरमाई। आगे जंगी कैदियों के मुतालिक अहकामात जिक्र फरमाए हैं। फैजा लकीतुमुल्लज़ीना कफरू, इस आयत के अंदर ये पूरी बात इरशाद फरमा दी है। मैं ये सारा खुलासा इन आयत का आपकी खिदमत में रख देता हूँ। यहाँ पर अल्लाह जल्ला शानो ने जो बात इरशाद फरमाई है, तो जंगी कैदियों के बारे में दो इख्तियार दिए हैं, फिदिया लेकर आजाद कर दें या बगैर फिदिया लिए आजाद करें। बदर के मौके पे 70 काफिर गिरफ्तार हुए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की अक्सरियत से मशवरा लेकर इन्हें फिदिया पे छोड़ दिया, जिस पर अल्लाह ताला ने यूं फरमाया था कि यहाँ फिदिया लेकर छोड़ देने का इख्तियार दिया जा रहा। तो दोनों बातों के मामलात को यूं अल्लाह जल्ला शान ने फरमाया कि असल तो यह था कि कुफ्फार की ताकत को कुचल देना चाहिए, लिहाजा फिदिया लेकर छोड़ने का मतलब तो यह बन रहा था कि इनकी ताकत को अच्छे तरीके से कुचले बगैर रिहा किया जा रहा। तो रब्बे करीम ने इस पर अपनी नाराजगी की बात इरशाद फरमाई। बाद में मुसलमान और इस्लाम को ताकतवर और कुफार कमजोर हुए, तो इस आयत का हुक्म फिर इस तरह दे दिया गया। अब इस बात पूरी का खुलासा क्या निकला कि मुसलमान हाकिम कैदियों के मुतालिक उसको 4 किस्म के इख्तियार हासिल है। इस आयत के अंदर रब्बे करीम ने पहले इख्तियार यह दिया कि जब कैदी लोग गिरफ्तार हो गए हैं, इनको वो चाहे तो कत्ल कर दे या चाहे तो गुलाम बना दे, फिदिया लेकर आजाद करे, और फिदिया में जो पैसे हों वो कैदियों के तबादले में या फिदिया के मुकाबले में कोई चीज रख लें या फिदिया के बगैर भी आजाद कर लें। तो ये इख्तियारात दिए गए और ये इस तरह मामला संभाला गया। यहाँ पर जो नाराजगी की बात मैंने आपकी खिदमत में की है, इस बात को यूं समझिए कि अगर अल्लाह जल्ला शानू के यहाँ किताब तकदीर में ये बात तय ना हो चुकी होती कि इनके साथ ऐसा होगा, तो फिर नाराजगी की और अजाब की और इस तरह की बात थी। लेकिन अल्लाह के यहाँ चीज तय थी, तो इसलिए इस मामले को ऐसे ही रख दिया गया। इससे अगली आयत में मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून की आयत में अहले जन्नत के इनामात को जिक्र किया जा रहा कि अहले जन्नत को क्या इनाम मिलेगा। जन्नतियों के इनाम का मतलब क्या है? जन्नत में अल्लाह ताला ने 4 किस्म की नहरें अता फरमानी है। पानी की नहर बिल्कुल साफ होगी, दूध की नहर जिसका जायका तब्दील नहीं होगा, शराब तहूर की नहर जो लज्जत वाली होगी, कड़वी नहीं होगी, बदबूदार नहीं होगी, और शहद की नहर
जो बिल्कुल साफ और सुथरी होगी। ये मुसलमानों को और अहले जन्नत को ये चीजें मुयस्सर होगी। इसकी अगली आयत में मुमिनीन के साथ मुनाफिकीन के दरमियान में फर्क को जिक्र किया जा रहा है कि मुमिनीन मुस्लिमीन जो है सहाबा कराम आयत नाज़िल होती है वो खुश होते हैं, इसके इंतहा में होते हैं कि इस पे अमल करेंगे, और जो मुनाफिक होती हैं उसके लिए आयत नाज़िल होती है तो खौफ के मामलात में इन पर मौत की ख़ुशी आ जाती है। ये इस तरह के मामलात हैं, ये फर्क बता दिया गया। फिर अगली आयत में कुफ़ार के लिए वईद आ गई है कि हर वो काफिर जो शरीयत के रास्ते में रोड़े अटकाता है, इनके लिए बतौर खास अल्लाह जल्ल शानू ने एक वईद फरमाई। ये मुराद तो बनो कुरैज़ा के यहूदी हैं, जैसे इन्नल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाह में अल्लाह जल्ल शानू ने इनकी बात इरशाद फरमा दी, और ये पूरा खुलासा यहाँ आया। अगली आयत में अल्लाह जल्ल शानू की इस सिफत को बयान किया जा रहा है कि रब्बे करीम कायनात में किसी का मोहताज नहीं है और पूरी कायनात अल्लाह जल्ल शानू की मोहताज है। यहाँ से बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ने तुम्हें माल खर्च करने का हुक्म दिया, सुम्मा ला यकूनू की बात में फरमाया गया। अल्लाह अपनी शान बेनियाजी को यूं इरशाद फरमा रहे कि हमें तुम्हारी अम्वाल की जरूरत नहीं है, अगर तुम तब्दील भी हो गए तुम्हारी जगह अल्लाह और लाएंगे जो मुकम्मल इताअत करेंगे। तुम्हारा माल इसीलिए लग रहा है कि इसमें तुम्हारे लिए फायदा हो। ये बात करके सूरत मुहम्मद की यहाँ तकमील हो गई। इसके आगे जो है वो सूरतुल फतह है, सूरत फतह भी इसे कहते हैं। वजह तस्मिया इस सूरत की क्या है कि सूरत फतह में फतह मक्का का जिक्र है। पहली आयत में लफ्ज फतह मौजूद है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, तो अल्लाह जल्ल शान ने यहाँ से इस बात को जिक्र फरमाया। इसका खुलासा क्या है कि रिसालत में आब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कराम ने ख्वाब देखा। वो ख्वाब क्या था कि हम मक्का मुकरमा में गए हैं, मस्जिद हराम में दाखिल हो रहे हैं, और वहां पर जो है ना क्या कहते हैं गोया एक उम्रे के लिए जा रहे हैं। एक अरसा गुजर गया था, 6 साल गुजर गए, सहाबा कराम हिजरत करके मदीना आए थे तो वापस मक्का नहीं गए, तो इसलिए इनका इश्तियाक बढ़ गया, तो उस पर एक सफर शुरू हुआ। ये उस सिलसिले में पूरी बात यहाँ इरशाद फरमाई गई, लेकिन सन 8 हिजरी में जाकर मक्का मुकरमा फतह हुआ। फिर अगली आयत में लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र, इसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और बाकी अंबिया कराम के मामले को बयान फरमाया गया कि अंबिया कराम जो हैं वो बाकी अंबिया की तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जैसे अगले पिछले गुनाह समझते हैं तो वो भी माफ हो गए। इसके आगे रब्बे करीम ने जो एक बात इरशाद फरमाई है यहाँ, उससे पहले मैं एक जुमला यहाँ आपकी खिदमत में समझाता हूँ कि ज़म्ब का माना क्या है। लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक, ज़म्ब का माना, ज़म्ब का एक माना इल्जाम भी होता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मक्की और मदनी जिंदगी में जिन जिन लोगों ने गलत इल्जामात लगाए हैं, तो खुली और शानदार फतह की वजह से ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे लोग मुतक़िद बन जाएंगे, मुवाफ़िक़ बन जाएंगे, इल्जामात के वजह ये खुद मदह करेंगे तो मामला सारे का सारा साफ हो जाएगा। इसकी अगली आयत में बैत रिज़वान को जिक्र फरमाया, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम। इस आयत में बैत रिज़वान का जिक्र है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जमात के साथ उम्रे का सफर फरमाया। हुदैबिया के मकाम पर रुकावट डाली गई, वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को मक्का भेजा, फिर उनकी शहादत की गलत अफवाह फैलाई गई, फिर उसके मुकाबले में ये इत्तला आई तो यहाँ पर बैत हुई। 1400 सहाबा कराम ने बैत की, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन के खून के बदले के लिए बैत हो गई। तो इस बैत का जिक्र फरमाया कि इन्होंने अल्लाह के हाथ पे बैत की है, गोया रसूलुल्लाह के हाथ पे बैत, अल्लाह के हाथ पे बैत है। ये पूरी बात यहाँ पर इरशाद फरमाई है। यहाँ यदुल्लाह की जो बात है कि अल्लाह के हाथ पर बैत फरमाई है, ये आयत मुतशाबिहात में है कि अल्लाह के हाथ से क्या मुराद है, लिहाजा इस पर ईमान रखना चाहिए, इस पर बहस नहीं करनी चाहिए। इससे आगे मुनाफिकीन के हीलों और बहानों को जिक्र किया जा रहा है। सयक़ूलु लकल मुखल्लफून मिनल अअराब ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुदैबिया के सफर से जाने लगे तो हजरात साहबे कराम तो पहले तैयार थे, पर मुनाफिकीन के दिल में था कि अगर हम उम्रा के लिए मक्का गए तो हम कत्ल हो जाएंगे, लिहाजा वापस नहीं आ सकते। अब जुबान से कह रहे हैं हमारी मजबूरी है, कुछ मसरूफियत से हम जा न सके, इसी वजह से कुछ और हो गया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वापसी पर ये मुनाफिकीन ने हीले बहाने किए, तो कुरान पाक ने इसका जिक्र किया। अब जिन लोगों ने सुलह हुदैबिया के मकाम पर बैत रिज़वान फरमाई थी, इन सहाबा कराम के लिए रब ने फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने बैत हुदैबिया वालों को बैत रिज़वान फरमाया कि अल्लाह इनसे राजी हो गया। ग़ज़वा बदर के शुहदा की तरह इनके साथ अल्लाह ताला ने अपनी रजा की बात फरमाई। व असाबहुम फतहन क़रीबा फरमाकर फतह खैबर की बात की खुशखबरी भी अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने दी है। और इसकी अगली आयत में वल्लज़ी कफ़्फ़ा, इस आयत में अल्लाह जल्ल शानहू ने हुदैबिया के मकाम पर जो मुशरिकीन ने इधर से 50 आदमी भेजकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम को कत्ल करने की नाकाम कोशिश की थी, उनके मामलात को अल्लाह पाक जल्ल शानो ने ख़त्म करा के मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार करा लिया। उधर मुशरिकीन ने हजरत उस्मान और उनके साथियों को मक्का में रोक लिया था और इन 50 अफराद को कत्ल करने के मुसलमानों के मामलात की डर के मारे फिर इधर से इनको रोक दिया, उनके दिल में इनका रौब डाल दिया गया। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला की शहादत से वो बहुत लोग रुक गए, आखिर सुलह पे आमादा हुए और जिसके साथ ये मामला पूरे का पूरा हुआ। तो अल्लाह ने यहाँ फरमाया फअंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीन। ये आयत बता रही है कि मुसलमानों के ऊपर किस तरह सकीना नाजिल हुई, अल्लाह जल्ल शानो के मामलात की ठीक नाजिल हुई और मुसलमानों ने बिल्कुल यहाँ अल्लाह जल्ल शानो के हुक्म के साथ, फतह के साथ और तरतीब के साथ गुजारा। यहाँ पर उस ख्वाब का जिक्र किया है जो ख्वाब सहाबा कराम ने देखा था, तो उस ख्वाब के बारे में फरमाया लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़। यहाँ उस ख्वाब का जिक्र किया जा रहा है जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा और सहाबा कराम को बताया। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिक़ीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून। ये इस आयत में बताया गया कि नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और नबी का ख्वाब तो वही है, लिहाजा इस ख्वाब में हुदैबिया के सफर पे जो रुक जाना है आप इसको यूं ना समझिए, क्योंकि इसमें लिमिटेशन नहीं बताएगी कि ये कब पूरा होगा, लिहाजा ये जरूर पूरा होगा। और फिर वो जरूर पूरा हुआ, अगले साल सन 7 हिजरी में जाके पूरा हुआ जब उमरतुल क़ज़ा हुआ और लिहाजा ये मामला बिल्कुल ठीक हो गया। उसके आगे अल्लाह जल्ल शान ने नबुव्वत के भेजने की वजह को बयान फरमाया, वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। यहाँ पर इरशाद फरमाया वही अल्लाह है जिसने अपने पैगंबर को तमाम अदियान पर दीन को गालिब करने के लिए भेजा है और वही अल्लाह की गवाही काफी है। अब गलबे की दो बातें होती हैं, एक होते है बुरहानी गलबा यानी दलाइल के साथ गलबा, एक होता है अमली गलबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलील के साथ तमाम के ऊपर गालिब हो गए तो बुरहानी गलबा तो बिल्कुल हो गया। जो अमली गलबा है वो सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन के दौर में पूरा होगा, फिर तमाम कुर्रा अर्ज पर रसूलुल्लाह के दीन का गलबा आएगा, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में कुर्बे क़यामत से पहले हो जाएगा। इसके आगे फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार की बात फरमाई है। यहाँ सुलहनामे में मुशरिकीन ने अपनी जिद की वजह से लफ्ज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कटवाने की बात की तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखवा दिया, क्योंकि हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी थे और मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह भी थे। तो यहाँ यही इरशाद फरमा दिया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बिल्कुल ठीक है। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को कहते हैं, रसूल पैगंबर की बात को कहते हैं। तो पैगंबर की जात भी महफूज है, पैगंबर की बात भी महफूज है। यहाँ ये इरशाद फरमाया गया। फिर वल्लज़ीना मअहु में सहाबा कराम की सिफात के बारे में बयान फरमाया गया कि जो रसूलुल्लाह के साथी हैं वो कुफ्फार के मुकाबले में सख्त हैं, आपस में नरम हैं। आप इनको देखोगे ये कभी रुकू करते हैं, कभी सजदा करते हैं, अल्लाह की फजल, अल्लाह की खुशनुदी को तलाश करते हैं और इनकी इबादत की वजह से इनके चेहरों पर इनकी इबादत का असर मौजूद है। तौरात में, इंजील में इनकी मिसालें मौजूद हैं। अच्छा, उन मिसालों को भी कुरान पाक ने इस तरह इस मिसाल में जिक्र फरमाया कि जैसे पहले किसी ने वहां दरख्त लगाने की बात की तो उस दरख्त की जगह पे पहले कोंपल निकली, फिर उसको मजबूत किया, फिर थोड़ी सी और मोटी हुई, फिर अपने तने के सहारे वो चीज खड़ी हो गई, तो किसान इसको देख के खुश होता है। ये अल्लाह जल्ल शानु इसलिए करते हैं ताकि काफरों के दिल को जलाए। ये सहाबा कराम की अजमत के बारे में बात फरमाई और फिर इस सूरत को यहाँ खत्म फरमाया। अगली सूरत सूरतुल हुजरात है जो इस सूरत के अंदर फिर जो है ना इसका मामला चल रहा है। सूरतुल हुजरात की वजह तस्मिया यानी इसका ये नाम क्यों रखा गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के रिहायशी हुजरे हैं, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के घर हैं, इसमें हुजरात का लफ्ज है इसलिए यहाँ बयान किया गया। अब जो इस सूरत को शुरू किया गया है या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुक़द्दिमू, यहाँ मजलिस आदाब नबवी को बयान किया गया है कि नबवी मजलिस के आदाब क्या होने चाहिए आपके लिए। तो यहाँ ये बयान किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आप बैठेंगे तो उसके आदाब ऐसे होने चाहिए, ऊंचा ना बोले, वहां बहस मुबासा के मामलात ना हो। अगर नबुव्वत की मौजूदगी में बंदा ऊंचा बोल रहा है, अदब का ख्याल नहीं कर रहा, तो कहीं ऐसा ना हो कि बंदा अपने आमाल को जाया कर बैठे। ये रसूलुल्लाह का अदब हुजूर की उस वक्त के मामलात में भी था, आज के मामलात में भी, रोज़े नबवी के मामले इसी अदब में दाखिल है। इसलिए वहां पर अल्लाह जल्ल शानु हम सबको मदीना तैयबा ले जाए तो वहां पर बरकत के साथ और अदब के साथ का मामला आज भी किया जाता है और किया जाना चाहिए। उसके बाद खबर की
तहकीक करने के हुक्म को अगली आयत में बयान फरमाया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। इस आयत के अंदर इसके शान नुज़ूल के बारे में एक वाकया भी है, लेकिन यहाँ आयत की पूरी तरतीब में आपकी खिदमत में बतौर खुलासा रख देता हूँ। इस आयत के शान नुज़ूल के बारे में एक मशहूर वाकया है, वो मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ कि सहाबी रसूल को ज़कात की वसूली के लिए भेजा, और उस सहाबी का नाम है हजरत वलीद बिन उक़बा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कबीले वाले उनके इस्तक़बाल के लिए निकले। जब वो कबीले वाले बस्ती से बाहर हुए तो इनके सामने एक शख्स जाहिर हुआ, जैसे इमाम इब्न जरीर तबरी रहमहुल्लाह ने इसको अपनी तफसीर में जिक्र किया है कि वो शैतान था, और उस शख्स ने इनके कान में आकर ये बात डाली कि कबीले वाले तो आपको कत्ल करना चाहते हैं। तो ये साहबी वहीं से वापस आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात आकर अर्ज की कि ऐसा ही मामला है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह फरमाई और सारा मामला बताया, और इस पर यह आयत नाज़िल हुई कि देखें जो ये फासिक हो ना उसकी बात पर एतमाद नहीं करते। तो यहाँ फासिक से मुराद सहाबी नहीं है, बल्कि फासिक से मुराद वही शरीर इंसान या शैतान था जिसने सहाबी के सामने आकर झूठ बोला है। तो लिहाजा उनको ये बात समझाया जा रहा और बताया जा रहा है कि किसी ऐसे फजूल शख्स की बात के ऊपर बंदा एतमाद न करे, न जिस बात की कोई गवाही हो, न उसको कोई सर हो, न उसका कोई पाँव हो, या इस तरह की बातों के मामलात हैं तो यूं बयान किए जा रहे। तो आयत में एक ज़ाब्ता आ गया कि जब तक खबर की तहकीक न की जाए उसको आगे न फैलाया जाए। तो इसकी जरूरी है कि बंदा तहकीक करे। यहाँ किसी सहाबी को फासिक करार नहीं दिया जा रहा, इसलिए पूरी तरतीब के साथ समझे तो ये एतराज नहीं आता जो आमतौर पर लोग सहाबा पे नऊज़ुबिल्लाह एतराज कर लेते हैं। यहाँ आदाब मुआशरत को बयान किया जा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू। इस आयत के अंदर बताया जा रहा है कि लोगों ऐसी जिंदगी न गुजारो जो फितने का बायस बने, फसाद का बायस बने, तकलीफ का बायस बने। ऐसे मामलात न हो कि एक दूसरे का मजाक न उड़ाओ, न मर्द मर्द का मजाक उड़ाए, न औरत औरत का मजाक उड़ाए, न मर्द औरत का मजाक उड़ाए, न औरत मर्द का मजाक उड़ाए। एक दूसरे को ताना न दें, एक दूसरे को बुरे अलकाब से न पुकारें, बदगुमानी न करें, किसी के ऐब की तलाश न करें, किसी की गीबत न करें। ये बात समझाई गई। और अगली आयत में या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़क्रिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। इस आयत में रब्बे करीम ने बताया कि ऐ लोगो, तुम तमाम के तमाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो, तुम्हारे कबाइल मुख्तलिफ हो सकते हैं, कौमें मुख्तलिफ हो सकती हैं, खानदान मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो इनका मकसद एक दूसरे पे फख्र नहीं है कि तुम इज्जतें जितलाते फिरो, मैं इस कौम का हूं, इस जबान का हूं, इस कबीले का हूं, बल्कि इज्जत का मामला तो तकवा पर है, तकवा का मदार है, नेकी का मदार है। इस बुनियाद पर बंदा एक दूसरे की इज्जत की बात करे कि इसके अंदर तकवा ज्यादा है। कौमियतों को और जुबानों के मामलात को सिर्फ तकवा का मेयार नहीं समझा जाता। इससे आगे सूरत क़ाफ है। अब सूरत क़ाफ, ये जो लफ्ज़ क़ाफ है, ये हुरूफ मुक़त्तआत में एक हर्फ है जिसका माना सिर्फ अल्लाह जल्ल शानो को मालूम है। इस सूरत में ज्यादातर अकीदा आखरत, मौत के बाद के मामलात का जिक्र है, बाद से बादल मौत की बात है। मुनकरीन को अल्लाह जल्ल शानो ने इस आयत में जवाब भी, इस सूरत में जवाब भी दिया है। मसलन क़द अलिमना की आयत में अल्लाह जल्ल शानो ने जवाब दिया कि लोगों का एतराज था कि जो हम मर के मिट्टी मिट्टी हो जाएंगे, आज़ा खत्म हो जाएंगे, दोबारा कैसे जिंदा किया जाएगा। तो रब्बे करीम ने जवाब दिया कि जमीन के जिन हिस्सों को घटा दिया जाएगा इसका पूरा इल्म अल्लाह के पास है। अल्लाह जल्ल शानू के हर चीज महफूज है। जो चीजें तुम्हारी जमीन ने तुम्हारे घटा दी है, जो भी हुआ रब्बे करीम उसको कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को इस बारे में फिक्रमंद होके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो रब्बे करीम ने आखिरत के मामले के बयान फरमाया। फिर जो अंबियाए कराम के इनकारी लोग हैं उनका जिक्र फरमाया। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस की बात फरमाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि इन लोगों ने आपके खिलाफ बात की तो पहले अंबिया के खिलाफ भी लोग बात कर चुके हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के खिलाफ कर चुके हैं। कुएं वाली कौम ने अपने नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के खिलाफ काम किया। कौम समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को झुटलाया और कौम आद ने इस तरह अपने नबी को झुटलाया है। फिरऔन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को झुटलाया है। कौम लूत ने झुटलाया। पूरी की पूरी बात फरमाई इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगली आयत में इज़ यतलक्कल मुतलक्कियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ईद, इस आयत के अंदर किरामन कातिबीन का जिक्र फरमाया कि क़यामत के दिन हर बंदे का आमाल नामा होगा, बतौर हुज्जत पेश किया जाएगा। वहां पर दो फरिश्ते मुकर्रर हैं जो इंसान के दाएं और बाएं कंधे पर बैठे हुए हैं, नेकियों और बुराइयों को लिख रहे हैं। इसकी बात फरमाई। इसकी अगली आयत में यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। अल्लाहु अकबर। ये जहन्नम से सवाल है, जहन्नम का जवाब है।
یہ بتایا جا رہا ہے کہ رب کریم کل قیامت میں جہنم سے پوچھیں گے سب کچھ تیرے اندر آ گیا کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ وہ کہے گی اور بھی کچھ ہے تو مجھے دے دیں۔ یہ معاملہ ہے۔ تو اس طرح ان مجرمین پر خوف اور زجر کی بات ہے، اللہ جل شانہ محفوظ فرمائے۔ پھر اگلی آیت میں متقین کے لیے، نیکوں کے لیے اللہ جل شانہ نے بات فرمائی وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ یہاں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جنت کو مؤمنین کے قریب کر دیا جائے گا، مؤمنین کے لیے اہل جنت کا معاملہ بالکل اچھا ہوگا، ان سے دور نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندوں کے معاملات کی بات یہاں ارشاد فرمائی۔ نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار۔ اس آیت میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فریضے کو ذکر فرمایا کہ آپ کا کام لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، بتلانا ہے، سنانا ہے، سمجھانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ اے نبی آپ اپنا فریضہ پورا کیجئے۔ جس کے دل میں آخرت کے دن کے معاملات میں اللہ کا خوف ہوگا وہ ضرور آپ کی بات کو تسلیم کرے گا۔ یہ کہہ کر پھر اس سورت کا اختتام ہوا۔ اس سے اگلی سورت جو ہے وہ سورت زاریات ہے۔ یہ پارہ نمبر 26 کی آخر میں شروع ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ قصہ ہے جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، کچھ پارہ 26 میں ہے، کچھ اگلے پارہ 27 میں ہے۔ یہاں 4 قسم کی مخلوقات کی بات فرمائی ہے۔ اللہ جل شانہ نے قسم کی بات فرمائی ہے ہواؤں کے بارے میں، قسم کی بات فرمائی ہے بادل کے بوجھ اٹھانے کے بارے میں، قسم فرمایا ہے کشتیوں کا جو آسانی سے چل رہی ہے، اور قسم اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے فرشتوں کے بارے میں۔ ان 4 مخلوقات کی قسم کھا کر قرآن کی فصاحت کو، بلاغت کو بیان کیا، پھر قیامت کو بیان کیا۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم کی بات فرمائی۔ پھر ان آیات کے اندر مؤمنین کی، متقین کی، صالحین کی، مسلمین کی رب کریم نے صفت کو اور ان کی بات ارشاد فرمائی کہ مؤمنین کے اموال میں مانگنے والوں کا حق، محروم لوگوں کا حق ہوتا ہے، لہذا جو محتاج ہیں یہ ان کو دیتے ہیں۔ بعض محتاج وہ ہیں جو مانگتے نہیں ہیں پھر بھی یہ لوگ ان کو دے دیں، تو مؤمنین متقین کی یہ صفت ہے۔ تو اللہ جل شانہ مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ یوں کہہ کر پارہ نمبر 26 کو پورا کر دیا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔